کل جو فیصلے سامنے آئے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو پہلے سائفر میں 10 سال قید کی سزا ہوئی، اب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اب یہ سزائیں پہلے بھی ہو سکتی تھیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا کے تاخیری حربوں کی وجہ سے ایسا ہوا یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی جو ہے اب وہ برے طریقے سے ناکام ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ان کے وکلا کی جو حملے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی مقدمہ جیت جائیں یا اس مقدمے میں اپنا موقف درست طور پر بیان کر سکیں جبکہ آپ کے وکیل ہی نہ پیش ہوں؟ آپ کے وکلا اپنی سیاسی کیمپین کرنے میں مصروف ہیں، آپ کے وکلا آپ کے مقدموں کا دفاع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ آپ کے وکلا جب آپ کے مقدمات پیش ہو رہے ہیں اس وقت عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے، تاخیری، حالانکہ ان کے اس میں وکلا کے پاس بڑا مارجن ہوتا ہے کہ وہ تاخیری حربے استعمال کر سکتے ہیں، چیزوں کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن جانے کیوں لگتا تھا کہ ان کی جانب سے اس طرح کے حربے استعمال کیے گئے، اس طرح کی حرکتیں کی گئی کہ یہ ساری چیزیں الیکشن سے پہلے ان فیصلوں پر منتج ہوئی۔ اس میں شاید یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہو کہ یہ فیصلے الیکشن سے پہلے ہوں، اس کا شاید انہیں ہمدردی کے ووٹ کی صورت میں فائدہ ہو، جو کہ میرے خیال میں کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے۔ دوسرا، جہاں تک یہ کیسز کا فیصلہ ہے تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھے۔ توشہ خانہ کے معاملے میں اگر آپ نے قاسم عباسی کی رپورٹ دا نیوز میں نہیں پڑھی، بالکل کتنی مالیت ان کی لگائی گئی، کتنے کے وہ پیچھے گئے ہیں، وہ بالکل واضح سی باتیں تھی۔ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ دقیق قسم کے معاملات نہیں تھے۔ اربوں کی مالیت کے تحائف کی قیمت اگر آپ 90 لاکھ روپیہ ادا کریں گے اور تحائف سے پہلے اگر آپ انہیں یعنی توشہ خانہ میں پیسے جمع کرانے سے، تحائف جمع کرانے سے پہلے ان کی قیمت جمع کرا دیں گے تو وہ بڑی عجیب و غریب سی چیزیں ہیں۔ المیہ اس سارے قصے کا یہ ہوا، یہ سب کچھ اس جماعت کی جانب سے اور اس جماعت کے سربراہ کی جانب سے کیا گیا کہ جن کا نعرہ یہ تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، جو نے ہر دوسری پارٹی کو ہمیشہ چور ڈاکو کہا۔ تو لوگوں کو تھوڑا سا وقت لگا اس بات کو ہضم کرنے میں کہ نہیں، یہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو خود دوسروں کو چور ڈاکو کہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی حقائق نے اس بات کو درست ثابت کیا کہ جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، جو حقائق ثابت کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے صاحب پھر وہی بات ہوگی جو سیاسی حکمت عملی تھی پاکستان تحریک انصاف کی یا بانی پی ٹی آئی کی، وہ تو پھر بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے۔ پارٹی کو ہم نے دیکھا کہ نشان بھی نہیں ملا اور اب سزائیں ہونا بھی شروع ہو چکی ہیں۔ ریاست سے بھی وہ جس طرح سے ٹکرائے تو وہ بھی ان کے کسی بھی رہنما کے لیے وہ درست نہیں ہے، ان کے وہ مفاد میں بھی نہیں رہا۔ جو اس پاپولیرٹی کے لیے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے سائفر کو بنیاد بنایا گیا، جس کے لیے سانیہ 9 مئی کیا گیا، اس کا ایٹ دی اینڈ تو نقصان پوری پارٹی کو ہوا، بانی پی ٹی آئی کو بھی ہوا اور اب نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیے، عمران خان اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے سیلیبریٹی رہے ہوئے ہیں۔ ورلڈ کپ سے لے کے شوکت خانم تک پاکستان کے لوگوں نے ان سے بے انتہا محبت کی ہے، لیکن اس محبت کا خمیازہ پاکستان اور پاکستان عمار صاحب I think is on the way، اور راستے میں ٹریولنگ کے دوران تھوڑی سی انٹرنیٹ کی دشواری بھی ہے، so he is with us again۔ جی عمار صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی سر، کنٹینیو کیجئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست پر حملہ آور ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیں۔ تو وہ باتیں بڑی واضح ہو گئی ہیں اور اب اس کے بعد پھر ریاست کو کسی نہ کسی جگہ سٹینڈ لینا تھا۔ آپ یہ بات بھول سکتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے جتھوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، لیکن اگر ریاست کسی سٹیج پر یہ بات بھول جاتی ہے کہ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کیا تو پھر ریاست کا اپنا وجود، نظریاتی وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ریاست کو کسی سٹیج پر سٹینڈ لینا تھا، اور ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ریاست سے مراد یہاں پر پوری قوم ہے۔ وہ جو اقدامات 9 مئی کو ہوئے اس کو پوری قوم نے نفرت سے دیکھا ہے، اس کی کہیں سے بھی توصیف یا تعریف نہیں آئی۔
तो फिर आप देखिए कि जब भी किसी शख्स ने रियासत के खिलाफ वो हथियार उठाए, डंडे उठाए, तो फिर रियासत ने उसके साथ यही किया है। और इमरान खान को अपनी पॉपुलैरिटी के जाम में यही कुछ देखना था। अभी भी आप देख लीजिए अब उनका नजरिया क्या है, अब उनकी सियासत क्या है। सिर्फ सोशल मीडिया, आप आज उनसे कहें कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना लें तो 1 घंटे के अंदर वो कोई भी ट्रेंड बना लेंगे, किसी को भी गाली दे देंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या है? ग्राउंड लेवल पर आप उनसे कहें 100 लोग इकट्ठे कर ले, वो 100 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ये एक इल्यूजन है पॉपुलैरिटी का, उसके सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा अमर साहब, जैसे आपने कहा ना कि जिस तरीके से उन्होंने रियासत मुखालिफ तहरीक चलाई है उसके वजह से ही उन्हें इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके फैसले आने बाकी हैं। आपको लगता है कि आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो मजीद खतरे में पड़ सकता है? उसमें अलकादर ट्रस्ट केस है, सानेहा 9 मई का फैसला भी अभी आना है, इद्दत में जो निकाह का मामला है अभी उस पर भी फैसला होना बाकी है, फॉरेन फंडिंग भी, हाँ जी फॉरेन फंडिंग केस भी। देखिए माजी में ये होता रहा है कि सियासी जमातें वक्ती तौर पर नाअहल होती रही हैं, सियासत -1 होती रही। किसी जमाने में पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो है वो नापसंदीदा हो गई थी, लेकिन फिर बाद में पसंदीदा हो गई। किसी जमाने में नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने डॉन लीक कर दी, तो उसके बाद ये अब काबिल कबूल नहीं रहे रियासत में, कुछ अरसे के बाद काबिल कबूल हो गए। इमरान खान के बारे में अगर आप ये तसव्वुर कर रहे हैं तो ये खाम ख्याली है, ये गलत फहमी है। ये नहीं हो सकता कि ये कुछ अरसे के बाद काबिल कबूल हो जाएंगे। 2-3 साल के बाद ये दोबारा रियासत इन्हें जेल से निकाल के लाडला बना लेगी और गोद में बिठा लेगी। इसलिए कि उन सब लोगों में से कोई इस स्टेज तक में गया, किसी ने वो रेड लाइन क्रॉस नहीं की जो इमरान खान ने जो रेड लाइन क्रॉस कर ली है। इमरान खान ने हर वो बाउंड्री क्रॉस कर ली है कि जिससे रियासत का तशक्कुस मजरूह होता था। लिहाजा मुझे इनकी वापसी का नहीं नजर आता। ये खाम ख्याली है और खुशफहमी है लोगों की कि 2-3 साल के बाद इमरान खान दोबारा मैदान सियासत में होंगे। एक तो एज उनके साथ नहीं है, वो जिंदगी के जिस मरहले पर है 2-3 साल के बाद वो या 4-5 साल के बाद वो दोबारा सियासत में इस शदोमत के साथ हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो एक तो ये फैक्टर है, और दूसरी बात ये है कि रियासत उनको इस तरह माफ नहीं कर सकती। लेकिन हमारे साथ दूसरी तरफ ये भी तो मामला है कि वो भी अपने स्टांस से अभी भी पीछे नहीं हट रहे। जब भी सहाफियों से कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हो जाए तो उनका जो रवैया है, उनकी जो टोन है वो पहले से भी ज्यादा सख्त है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं ये दोगली पॉलिसी है। जनरल बाजवा से भी जब वो मुलाकात करते थे, जलसों में जनरल बाजवा के खिलाफ वो इंतहाई जहरीली गुफ्तगू करते थे और कहते थे कि जो शेरों की फौज का लीडर सिपाहसालार और उनको मीर जाफर मीर सादिक कहा करते थे। तो दूसरी जानिब वो आरिफ अलवी के जरिए पूरी तरह माफी मांगने को तैयार थे। 2 मुलाकातें जो उन्होंने आरिफ अलवी के जरिए की, उनके अंदर वो पूरी तरह तैयार थे और पूरी तरह उन्होंने माफी मांगी कि किसी तरह एक दफा फिर फौज उन्हें गले से लगा ले। और जनरल बाजवा इस बात पर बहुत हैरान थे कि एक तरफ ये जलसों में मुझे गाली देता है, दूसरी तरफ ये शख्स मुझसे माफिया मांग रहा है। तो उनके किरदार में ये बहुत खामी है। अभी भी उन्हें वो मुसलसल गुफ्तगू क्या कर रहे हैं कि मेरे से मैं 6 महीने से बैठा हूं, कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। अब वो बात करने से क्या मुराद है? जाहिर है वो नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से तो बात करना नहीं चाह रहे, इसलिए कि वो तो उन्हें कुछ समझते ही नहीं है। हालांकि इस स्टेज पर अगर वो उनके बचाव का वाहिद रास्ता सियासी कुव्वतें हैं, उन्हें इस वक्त मीसाके जमहूरियत की जरूरत है। लेकिन उन्होंने अपना पर्सोना यही डेवलप किया है कि बाकी सारे चोर डाकू हैं, अगर उनसे बात करेंगे तो उनकी और उनके कारकुनों की नजरियाती मौत वाक़ई हो जाएगी, तो इसलिए वो उनसे बात नहीं करेंगे। तो जाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। अभी वो जितना मर्जी नारे लगाएं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन उनको जरा सा इशारा मिले वो बात करने के लिए तैयार होंगे। ये उनकी दोगली पॉलिसी आज से नहीं, बहुत पुरानी है। अच्छा ये बताइएगा, कल भी इस बारे में गुफ्तगू हो रही थी, सीनियर तज़कियाकार फवाद अहमद साहब जो एंकर पर्सन है वो हमारे साथ कल गुफ्तगू में मौजूद थे। जब ये फैसला आया तो वो भी यही कह रहे थे कि इमरान खान चाहते तो हैं कि बात हो, कोई दरमियान का रास्ता निकले, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है, मसूद साहब आपको लगता है कि अभी इतना जल्दी ये सब कुछ आसान नहीं होगा? वो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो रियासत के दिल में अभी कहीं बहुत दूर है, अभी इसको बहाल होने में, वो रास्ता आसान होने में काफी वक्त दरकार है?
जी बिल्कुल, भी ये बात कह रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है। इन केसेस में देखिए, ये केसेस बिल्कुल दुरुस्त है। जो खामी है वो ये है कि जिस तरीके से इन केसेस को जल्दी निपटाया गया है, उससे दिलों में और जहनों में शकूक पैदा होते हैं। इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था, इसको जरा तसल्ली से किया जा सकता था, और अगर वो तसल्ली से करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जिस तरह निपटाया गया है उससे आदमी के जहन में शकूक आते हैं। तो ये हो सकता है कि 4-6 महीने के बाद इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है। उसमें ये हो सकता है इमरान खान की सजाएं कम हो जाए, उसमें ये हो सकता है कि इमरान खान की किसी एक आध केस में कोई जमानत हो जाए, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि इमरान खान दोबारा मसनद इक़्तिदार पर बैठे होंगे और दोबारा सर पे ताज पहना होगा। ये खाम ख्याली है, ये खुशफहमी है, ये नहीं होगा। ठीक है हमारे साहब, कल तोशाखाना रेफरेंस का जब फैसला सामने आया है उसके बाद बुशरा बीबी ने फिर गिरफ्तारी भी दे दी, और अभी जो इतलात रात के मौसूल होती रही वो यही थी कि बनी गाला उन्हें शिफ्ट किया गया, उसको सब जेल करार दिया गया। बहुत एतराजात उठाए जा रहे हैं इस पर भी कि ये किस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो दूसरी खवातीन जिनको कैद किया जाता है उनको तो जेलों में ही रहना पड़ता है। जी, मरियम नवाज के साथ भी उनको भी ये ऑफर की गई थी कि उनके घर को सब जेल बना दिया जाए, उन्होंने ये ऑफर कबूल नहीं की थी। जी, अमार मसूद से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, और उनका ये कहना था कि अभी शायद काफ़ी वक्त जिस तरह से बानी पीटीआई के मामला जिस तरह से ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात का शिकार है, इतना जल्दी नहीं होगा इन मुश्किलों से निकलना। जिस तरह से केसेस के फैसले भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी बानी पीटीआई को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाएगी, और कल तोशाखाना रेफरेंस का फैसला भी सामने आया जिसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 14-14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। बिल्कुल, और यही मामला था कि जिसके ऊपर हम अमार मसूद साहब का तज्जिया दे रहे थे, और कल इसी पर हमारी ट्रांसमिशन भी हुई। वुको के फैसला आने के बाद बहुत सी मजीद चीजें हरकत में आई और बुशरा बीबी ने खुद जाकर अपनी गिरफ्तारी दी। लेकिन अब जब हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे तो हम ये बात कह रहे थे कि ये जो मामलात हैं उस पर बुशरा बीबी के घर को ही सब जेल करार दिया गया है और अब वो अपने घर में ही कैद रहेंगे, जिस पर जाहिर सी बात है उनके जो मुखालिफिन हैं वो तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अमार मसूद साहब का जा रहा है एक बार फिर से हमारे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, बात ये है कि ये ऑफर मरियम नवाज को भी की गई थी, उन्होंने ये ऑफर नहीं कबूल की। इमरान खान वगैरह एंड कंपनी के लिए ये चीजें नहीं है, जेल वगैरह के लिए ये तो समझ रहे थे कि रियासत हमेशा इन्हें गोद में ही उठाए रखेगी और ये लाडले ही बने रहेंगे। मुझे मरियम नवाज से मुलाकात का इत्तेफाक भी है जेल के दिनों में, जब अडियाला में ये लोग कैद थे, और उनसे कुछ वो कहानियां सुनने का भी इत्तेफाक है जो जेल में इनके ऊपर बीती है। अब जिस तरह का कमरा इन्हें दिया गया था, सारी रात मच्छरों वाले में ये वाला कमरा इनको दिया हुआ था, कमरे के अंदर कैमरे लगाए हुए थे, बाथरूम के अंदर कैमरे लगाए हुए थे। रात के 12 बजे जब कोई भी खातून शबखाबी के लिबास में होती है उस वक्त 12-12 लोग आके मोबाइल पे वीडियोस बनाने लग जाते थे। अब ये सारी कैफियत उनके साथ गुजरी है, उसके बावजूद मैंने उन्हें देखा इंतहाई कॉन्फिडेंट तरीके से, और वो लोग बल्कि जो लोग मिलने आते थे उनको हौसला दिया करती थी, और उन्होंने कभी किसी किस्म की कमजोरी का इजहार नहीं किया, कभी किसी किस्म की रियायत नहीं मांगी, बड़े हौसले से कैद बर्दाश्त की। ये मैं खुद इन चीजों का विटनेस हूँ और हमने उनसे बात करके ये सारी चीजें देखी है। ये तो अभी इब्तिदा बहुत सा एक केस में कैद हुई है, 14 साल एक केस में कैद हुई है, अभी तो इन्होंने बहुत सारे मरहले देख रहे हैं। अभी तो इमरान खान को जो साइफर वाला केस है उसके कैद बामुशक्कत हुई है। जी सही। अच्छा, आपको पता है कि क्या क्या काम करने पड़ते हैं उसमें, किचन का काम करना। ठीक है। अच्छा हमारे साहब, एक ना क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं हम आपसे, आपका तजुर्बा इस बारे में क्या कहते हैं? पढ़ा ये है, सुना ये है, गलत भी हो सकते हैं कि जब इनकलाब नाकाम हो जाए तो वो बगावत में तब्दील हो जाता है, और इस वक्त जो पीटीआई के साथ सुलूक हो रहा है वो शायद एक इसी चीज के मुतरादिफ भी हो सकता है कि उनके लीडर को एक बागी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो रद्द-ए-अमल था वो बड़ा रिबेलियस रहा है टुवर्ड्स रियासत। क्या ये एक ट्रू फैक्टर है? अच्छा, एक तो मैं
ये आपकी तस्दीक जरूर करा दूं कि ये किसी स्टेज पर भी इनकलाब नहीं था, ये एक तरह की ब्लैक टैक्टिक थी। तो ब्लैकमेलिंग को आप कहीं पर भी इनकलाब या इनकलाब से करीबी चीज नहीं कह सकते। तो वो तो उन्होंने ये किया, उनका ख्याल था कि रियासत उनके सामने झुक जाएगी, वो चीजों को आग लगाएंगे, तोड़े फोड़ेंगे और उसके बाद रियासत उनके सामने झुक जाएगी। उस तोड़ फोड़ को, उस जलाओ घेराव को, उस लूट मार को, उस शौहदा की यादगारों को नजरे आतिश करने को अगर आप इनकलाब का नाम देना चाह रही हैं तो बहुत ही गलत बात है। ये नहीं कहना चाहिए, उसकी तारीफ इनकलाब नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की और उसकी सजा पाई है। दुनिया में कोई रियासत, मतलब आपको पता होगा कि अमेरिका में इस तरह की ट्रंप के हामियों ने कोशिश की और उसके बाद वहां पर मेरे ख्याल में 800 या 1100 लोग उस दिन गिरफ्तार हुए। 20-20 साल के उनकी जियो फेंसिंग की गई, उनके शनाख्त की गई। 20-20 साल के लिए वो लोग गिरफ्तार हुए और आज तक गिरफ्तार हैं। और उनके बारे में कोई नहीं इस तरह, वहां पे तो इस तरह की आवाजें नहीं उठ रही जिस तरह हमारे यहाँ आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल क्लियर है कि आप चीजों को तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, आप व्हाइट हाउस पर हमले इस तरह नहीं कर सकते। हमारे यहाँ गलती हुई कि हम इस काम के लिए हमने 8-10 माह लिए, हमें नहीं लेने चाहिए थे। हमें उसी दिन हमारे पास रिकॉर्ड था, वीडियोस मौजूद थी, हमने चेहरे शनाख्त कर लिए थे, पुलिस के पास रिकॉर्ड था, हमें उसी दिन सजा देनी चाहिए थी। 20-20 साल के लिए लोगों को अंदर कर देना चाहिए था, फिर उसके बाद हमें बात करनी चाहिए थी। हमने बहुत डिले किया है, बहुत डिले किया है और उस डिले। लेकिन हमारे साथ अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत उजलत में फैसले किए गए हैं, ये इलेक्शन के बाद भी हो सकते थे। बहुत शुक्रिया आपके तज्जे का, आपके वक्त का, आपने अपना वक्त दिया। ये इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में इंतखाबात के मामले के हवाले से और अभी भी कुछ ही रोज बाकी रह गए हैं। तो लेट्स सी क्या आगे चलकर कौन सी जमात। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें।